Now, this uh, securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act 2002, uh, इसको हम लोग शॉर्ट में सर्फेसी एक्ट बोलते हैं. And today I'm going to show you some of the relevant portions जो कि as a junior lawyer or if you're a student trying to learn the basics and the structurally basics will help you to understand what this act is all about, what its purpose, and how does it function. So to start with, let's start with the name of the statue itself. That will help you to understand कि क्या है and give you some idea. So it says the securitization and reconstruction of financial asset. Securitization means मतलब कोई भी asset अगर है उसको सिक्योर करना. अ, आप सभी को लोन के बारे में बहुत पहले से ही पता होगा थोड़ा बहुत. अब आप दो तरह के लोन होते हैं, एक होता है लोन विद कोलैटरल और एक होता है नॉन कोलैटरल लोन्स. जैसे आपके क्रेडिट कार्ड, उसमें कोई कोलैटरल नहीं होता, बैंक के पास कुछ गिरवी नहीं होता. और जैसे आपके कार लोन, हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, इसमें आपका बिजनेस हो, हाउस हो, कार हो, दैट रिमेन्स एज अ कोलैटरल. उनके पास एक तरह से गिरवी होता है, उनका अधिकार होता है. दे कैन take possession at any time they feel, or if you're a defaulter. So that is what it is called securitization, मतलब उसको सिक्योर करना. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट, रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली मीन्स उसको फिर से वापस सेल कर दो. जैसे सोचो आपने एक कार लिया है, आपने पैसे नहीं दे पाए, तो बैंक ले जाता है, देन दे अगेन सेल इट टू सम अदर पर्सन. इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये मतलब जो बैंक का या फिर जो फिनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उनका जो राइट है, how do they enforce. But that part is basically the administrative part. Now in this particular act, surface act, there are majorly three agencies जिसके बारे में आपको थोड़े बहुत, एक ज़्यादातर ये बैंकिंग एजेंसी होंगे, एक रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होते हैं, बेसिकली एजेंट होते हैं, क्योंकि बैंक को खुद से इतना सब कुछ बेचना नहीं होता है कि वो आपसे ले फिर आप खुद से बेचे, बिकॉज बेचने का जो तरीका है it's a lot more complicated, right? The auction, advertisement and all those things. तो इसके लिए एक specialized companies है, those which are called reconstruction companies. और गवर्नमेंट का एक एजेंसी है, जुडिशरी मैकेनिज्म भी इसमें है, DRT. दो प्राइमरीली they don't have much function. I'll tell you when DRT comes in place. Now this from there are five or six chapters are there. Preliminary chapter आप सभी को पता होता है, mostly that contains definition and other things. Chapter 2, it talks about regulation of securitization and reconstruction of financial assets of banks and financial institutions. So this is mainly deals with the bank and the reconstruction companies, how they register themselves, how they operate. तो इसमें as a एडवोकेट आपका कुछ करना नहीं होता, बिकॉज आप तो उस एजेंसी में काम नहीं करना है या फिर आपको रजिस्ट्री करना है. सो दैट पार्ट इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट थिंग, राइट? जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एसेट, कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो उस कंपनी की बात कर रहे हैं, हाउ दे ऑपरेट, जो डोमेन में आपको जाना है नहीं एज अ लॉयर. Power of reserve bank to determine the policy, matlab reserve bank definitely they can do whatever, or they can set the standards, they can set new rules for all these companies. So this is mainly something for those agencies and corporations. Enforcement of security interest, now there mostly you may have instances आपके पास client आ सकते हैं, जो कि mainly they will come from this section, enforcement of security interest. Now, first you have section 13. Now, this is a very vital section. Why? Because the section 13, जब आप डिफॉल्ट होते हो, कोई भी लोन में आप नहीं दे पाते हो, then the first thing comes in place section 13. section 13 में क्या है, चलिए नीचे जाएंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा.
सेक्शन 30 ये कहता है, notwithstanding anything contained in section 69 or 69A of transfer of the property act, any security interest created in favor of secured creditor मतलब जिनसे आप पैसे लिए हो। अगर आपको क्रेडिटर और डेटर में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप देख ले। डेटर वो होता है जो उधारी में होता है, और क्रेडिटर वो होता है जिससे हम लोग उधार लिए हुए हैं। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब जिससे हम उधारी लिए चुके हैं और वो सिक्योर्ड है, क्योंकि ये हमारे निर्मला सीतारमन जी का स्टैचू है, और बैंकिंग जितने भी इंडस्ट्री है उनके दोस्त है। तो चाहे आप मरे या फिर कुछ भी हो जाए, बैंक को बैंक का पैसा मिलना ही है। चाहे बैंक में कोई स्टैट्यूटरी इश्यूज हो, या फिर अगर दे गिव इरेगुलर लोन्स, उसमें कोई फर्क नहीं है। दिस स्टैचू डजंट कवर इट। सो बैंक को अपना पैसा मिलना है। तो ये कह रहा है कि बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बहुत सारे स्टैचूज है जिसमें लेंदी प्रोसेस होते हैं नॉर्मली कोई सिक्योर्ड इंटरेस्ट को बेचने के लिए। तो सरफेसी एक्ट बेसिकली सबको हटा देता है, कहता है उधर चाहे जो भी हो, ये आपका अगर सिक्योर्ड इंटरेस्ट है, ये देखिए, सिक्योर्ड मे बी इन्फोर्स्ड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल। तो मतलब बिना कोई कोर्ट और ट्राइब्यूनल गए ये अपना जो अधिकार है उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। अच्छा, इसको बेटर समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहले ऐसा नहीं था कि ये जो रिकवरी प्रोसेस है ऑल ऑफ ए सडन आया हुआ है, पहले भी स्टैचू था। उसका नाम था द रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट। तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि रिकवरी ऑफ डेट्स मतलब जो उधारी है उसको रिकवरी करना है, और कैसे बैंकरप्सी। हालांकि बैंकरप्सी का नया कोड है अभी, जिसके मैंने एक अलग वीडियो है मेरे पास। बट इसमें क्या होता था कि जो डेट्स होते हैं उसको रिकवर करने के लिए एक प्रॉपर चैनल से एक जुडिशियरी मैकेनिज्म था। सो द इंस्टीट्यूशंस दे हैड टू नेविगेट थ्रू दैट जुडिशियरी मैकेनिज्म, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी होता था, और रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे हैं जो दोज इंस्टीट्यूशंस हैड टू फॉलो। अब ये लोग बैंक्स है, वही सीतारमन निर्मला जी के दोस्त है, उन्होंने सब वहाँ पे लॉबीबाजी करके उनको बताया कि देखिए हमें इतने रूल्स रेगुलेशन हमें तो नहीं, हमें कुछ सीधा रास्ता बता दीजिए आंटी, ताकि हम लोगों को हमारा पैसा जल्दी मिल जाए। तो मुझे पता नहीं उस समय सीतारमन जी थे या कौन थे, बट एनीवे लेट्स टेक हर नेम। आई एम श्योर शी इज़ नॉट गोइंग टू फाइल अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट मी। तो जो भी उस समय सीतारमन होंगे, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं एक ये एक्ट ला देता हूँ, उनमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक वेंडर रहेगा, आप मतलब वो कुछ भी करके झोल झाल करके बेच देंगे। आप चाहे कैसा भी लोन इशू करो, 2 नंबरी लोन है या फिर बिना डॉक्यूमेंट्स के लोन है, बिना जांच पड़ताल के लोन हो, चाहे वो उसको देने का क्षमता हो या ना हो, आप लोन इशू कर लो। प्रॉपर्टी तो है, 5 साल बाद प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाएगा, वो आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो उसको रिप्लेस करके ये सरफेसी एक्ट लाया गया है। तो सरफेसी एक्ट में डिफरेंस ये है कि नाउ दे डू नॉट नीड to go through any judiciary channel. They can basically sell without any intervention. They will give you a notice, give you some time, then they go to DM, and the DM basically helps to take the possession. Anyway, now it says, when the borrower who is under liability to a secured creditor under a secured agreement makes any default in payment of secured debt or any installment thereof such and such. Anyway, आप पढ़ सकते हो इसको। मेनली ये सेक्शन ये कहता है कि जब भी कोई एसेट वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, वो एनपीए बन गया, जिसे हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, तब वो क्या होता है, द बोरो द बोरोअर बाय नोटिस इन राइटिंग टू डिस्चार्ज इन फुल हिज लाइबिलिटी। तो बैंक क्या करता है, एक नोटिस भेजता है कि आपने 3 महीने से या 4 महीने से आपने पैसा नहीं दिया, आपको 60 डेज का एक नोटिस देता है। उस बीच में आपको वो पैसा क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज दे विल सीज और दे विल टेक द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सो ये
नॉर्मली यहीं पे आपको क्लाइंट, कभी कभार कुछ क्लाइंट मिल सकते हैं, जब ये नोटिस उनको मिलता है तब आपके पास क्लाइंट आ सकते हैं कि मुझे ऐसा नोटिस मिलना है। उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शन रहता है डीआरटी में जाने का, या फिर आप एजेंसी से बात करके देखिए क्या सिचुएशन है। सो सेक्शन 13(2) के अंदर ही नॉर्मली उनको नोटिस मिलता है कि अ, आपको ये क्लियर करना है। नाउ उसके बाद इन केस, यहाँ पे देखिए सब सेक्शन 4 में है, इन केस बोरोअर फेल्स टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी, मतलब नहीं दे पाया इन फुल पूरा में विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड सबसेक्शन 2, जो उसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर और बैंक मे टेक रिकोर्स फॉलोइंग रीजन, टेक पोजेशन, मतलब वो अपना पोजेशन ले सकता है, टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, अगर आपका बिजनेस लोन है तो आपका बिजनेस भी ले सकता है। और भी बहुत सारा है, तो वो वैरी करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, या क्या प्रॉपर्टी है, किस तरह का उसके पास राइट्स है। अच्छा, इसमें और एक सेक्शन है जो थोड़े बहुत काम के है, वो है आपका सेक्शन 17। एक काम करते हैं, ऊपर चले जाते हैं, 1 सेकेंड। एप्लीकेशन अगेन मेजर्स टू रिकवर सिक्योर डेट। ये आपका, जब आपको नोटिस मिलता है तब आप कहाँ जाते हैं, यहाँ पे जो एजेंसी काम करते हैं दैट इज द डीआरटी। ये आपको कहाँ मिलेगा, सेक्शन 17। तो चलिए सेक्शन 17 में चलते हैं। हाँ, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एनी ऑफ द मेजर्स रेफर्ड टू इन द सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 13, आपको याद होगा सबसेक्शन 4 जो उसका पोजेशन लेने का बात आता है, his authorized officer under this chapter may make an application along with such fee as per। तो जब आपको वो सेक्शन 30 में जब नोटिस मिलता है, तब अगर आप एक एडवोकेट हो या फिर आपसे लीगल एडवाइस कोई ले रहा है, लॉ स्टूडेंट हो, तो आप क्या करते हैं, उसके बाद सेक्शन 17 आता है जिसके अंदर आप डीआरटी में जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसका कुछ फीस होता है, शायद 1/3 या फिर कुछ सबमिट करना पड़ता है, मुझे टाइम वो चेंज होते रहता है, या फिर दे विल प्रिस्क्राइब यू, टेल यू हाउ मच यू नीड टू सबमिट, बिफोर द मैटर कैन बी टेकन अप। सो ये ही एक ऑप्शन है जो रिलेवेंट होता है ज़्यादातर, बिकॉज डीआरटी के बाद उसके बाद आपका जो एपलेट ट्राइब्यूनल है वो भी डिरेट है, मतलब डेट रिकवरी एपलेट ट्राइब्यूनल। और अगर वहाँ से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के धक्के खा सकते हैं, बट चांसेस बहुत कम होते हैं इस तरह के मामले में। अपील टू एपलेट ट्राइब्यूनल, मैंने कहा जैसे कि वो डीआरटी के ऊपर है, डिरेट है, एपलेट ट्राइब्यूनल है, वहाँ जाके आप अपील कर सकते हैं अगर वहाँ से आपको कुछ अ, अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है, राइट ऑफ बोरोअर टू रिसीव कॉम्पेंसेशन एंड कॉस्ट इन सर्टेन इफ द डीआरटी डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन मेड अंडर 17, वही 17 के अंदर ही आपको एप्लीकेशन करना होता है, दैट इज द ओनली प्लेस वेयर यू गो। Appellate tribunal prefer under section 18 hold and possession secured asset by the secured creditor is not in accordance with the provision। तो बेसिकली ये कहना ये हुआ कि अगर जो डिपोजेशन है या फिर कुछ मिस्टेक है, सो इन दैट केस दे माइट गिव यू सम कंपनसेशन। सो दैट्स द होल स्टोरी बेसिकली अंडर सेक्शन। बट ये सेक्शन ज़्यादा आपके काम के नहीं है। चैप्टर 5 में सेंट्रल रजिस्ट्री है। सेंट्रल रजिस्ट्री बेसिकली ये जितने भी रिकंस्ट्रक्शन एजेंसीज है, देयर इंफॉर्मेशन जो भी सिक्योर्ड एसेट है वो सारा सेंट्रल रजिस्ट्री में रहता है। जैसे वो आपका सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री करके भी एक है बैंकिंग कोड में, जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे, तो यहाँ का है सेंट्रल रजिस्ट्री जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रहता है। रजिस्ट्रेशन बाय सिक्योर क्रेडिटर एंड अदर क्रेडिटर, मतलब जो एजेंसीज है नॉर्मली बैंक्स है, वो लोग दे हैव टू डू रजिस्ट्रेशन विद, हैव इंफॉर्मेशन विद द सेंट्रल रजिस्ट्री एज वेल। चैप्टर 5 में है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ये पेनल्टीज
प्राइमरीली टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जो एजेंसीज है उनका जो ड्यू वर्क है, रजिस्ट्रेशन, सेंडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड ऑल दोस. It basically talks about those penalties and the offenses, and then there is a section for miscellaneous offenses by companies. अगर कुछ कंपनी का है सिविल कोड नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन, मतलब इस मामले में सिविल कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं. आपके पास सेक्शन 17 में डीआरटी है या फिर डिरैट है, या उसके बाद आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है. पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे क्या है. ये स्टैंडर्ड है, हर स्टैचू में आपको मिलेंगे. तो मेन आपका जो सेक्शन है जहाँ पे litigation, most of the litigations pertaining to borrowers happen is under chapter 3, enforcement of security interest. So the notice section 13 में है, 17 में आप डीआरटी में जा सकते हैं, 18 में appellate tribunal है, और ये right to lodge a caveat that also done by the banks and other agencies as well. So that I think gives you some idea what SURFACE Act is all about. High court जाने का, now that is something I'll share from my experience. I've seen many advocates, they go to high court invoking writ jurisdiction because they probably जो agencies है, uh, they have violated basic principle or fundamental rights, principles pertaining to fundamental rights. But ज़्यादातर जगह में ये काम होता नहीं है. Reason being, this is exclusively commercial zone, so the scope of REIT is very limited, and the banks, उनको पता होता है कि कैसे पैसे वापस लेने हैं. So they leave, I mean, the error margin by banks are very less. So that's everything about SURFACE Act 2002. If you have any question or कुछ भी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक यू.